Bismillahirrahmanirrahim. It's our lecture number 5 of Sergeant 2 TV course. So, as we were discussing about the curves, so in previous classes, we have discussed the uh, basic terminologies and the basic methods for the setting out and ranging outs of the simple curves and the compound curves. And also in the previous class, we have discussed the need, objective, and definitions of the transition curves, that why transition curves are introduced in between the tangent and circular curves. Yeah, in between the two branches of the compound curves. Okay, and also we have discussed the super elevation, and we have discussed the different methods for the determination of the length of the transition curve. Okay, so today we will discuss the uh, methods, we can say methods, or for the setting out or ranging out of the transition curve. Like as we have discussed that, for example, if we have one line of communication, and suppose at this point we have deflected it into another line of communication, so then to make this directional change, this abrupt directional change gradual, we are providing a circular curve in between these two line of communication. So as we have discussed in the previous class, that again here we have some abrupt changes of different parameters, like curvature, mean from zero curvature to some curvature, or from infinite radius to some radius, or from zero super elevation to some amount of super elevation, also from zero radial acceleration to some amount of radial acceleration. So again, at this T1 point, these are also a kind of abrupt changes. So to make these changes more gradual, what we are doing, we are providing a transition curve first. Okay, then we are designing our required circular curve. Then again, we are designing a transition curve, so that we may shift more gradually, more comfortably, and more smoothly from a straight line into a circular curve, or from a circular curve into a straight line. So here we are providing a transition curve at the start of a circular curve and at the end of a circular curve. So then this curve will consist of two transition curve and one circular curve. So then we called it composite curve. Okay, the T1 point is the starting point of the transition curve, and suppose this is the suppose C point, so that will be the junction point between the transition curve and simple curve. Okay, again this is the D point is another junction point, and T2 is the end of the another transition curve. So combinedly we call it composite curve. Okay, and also we have discussed that suppose you have compound curve, so then in between the compound curve we are designing a kind of transition curve, just to smoothly, comfortably, and gradually shift from one radius into another radius. So then this will be a kind of transition curve. Now the question is how the transition curve will be designed. What will be the equation for the setting out or the ranging out of the transition curve? Okay, so that will be discussed in today class. And also in previous class we have discussed that suppose if here you are designing a circular curve of r radius, okay, then how much will be the allowable velocity? Okay, then based on the radius and velocity, how much radial acceleration will be produced in the circular curve, and how much will be our required super elevation. Okay, so if radius of a circular curve is given, then we can define the allowable velocity. Also we can determine the radial acceleration and the required super elevation.
on the circular curve, which we have discussed in the previous classes. Now to obtain these parameter gradual, smooth and comfortably, how much length of the transition curve will be required. So again, then you will have to find out the length of the curve. ठीक है, तो ये प्री रिक्विजिट पैरामीटर्स होते हैं, ये आप लोगों के पास गिवन होनी चाहिए. Then based on this, we will derive, yeah, we will define an equation for the setting out or ranging out of the simple circular curve. Okay. And again, before going into the detailed discussion, एक point जो है वो mind में रखें. देखें, अगर आप एक दो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के दरमियान अगर सर्कुलर करो डिजाइंड है ना, ठीक है, सपोज अगर आपने ये ए बी लाइन है सपोज, और एक हमारे पास बी सी लाइन है. ओके, नाउ टू मेक दिस एब्रप्ट चेंज ग्रेजुअल, सपोज यू आर गोइंग टू डिजाइन अ सर्कुलर करो. तो अब देखिए, सर्कुलर करो जो है यहां से स्टार्ट हो रहे हैं T1 और यहाँ पे खत्म हो रहा है T2. ठीक है, सो एज वी हैव डिस्कस्ड कि अगर डायरेक्टली आप एक स्ट्रेट लाइन से करो पे जा रहे हैं या करो से स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो उसकी रेडियस, कर्वेचर, एक्सेलरेशन और सुपर एलिवेशन में एब्रप्ट चेंजेस है. सो उसको अगर फर्दरली आप ग्रेजुअल बनाना चाहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन करो डिजाइन करते हैं. नाउ ट्रांजिशन करो जो आप डिजाइन करेंगे वो कहां से स्टार्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे ये तो डायरेक्टली टेंजेंट के साथ कनेक्टेड है ना. तो ट्रांजिशन करो कहां से स्टार्ट होगा, कहां पे सर्कुलर करो के साथ ज्वाइन होगा. तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि ट्रांजिशन करो जो होते हैं ये एक्चुअल T1 पॉइंट जो होता है ना, ये इस पॉइंट से स्टार्ट नहीं होता. फिर ट्रांजिशन करो फिर यहां से कहीं से स्टार्ट होगा. ठीक है, और ये जो मेन सर्कुलर करो है इसको हम थोड़ा शिफ्ट करते हैं. ठीक है, देखिए ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा हम शिफ्ट कर देते हैं, इसको शिफ्ट कहते हैं, शिफ्ट ऑफ सर्कुलर करो. वी विल डिस्कस इट इन लेटर स्लाइड्स. ठीक है, और फिर दूसरी इन पे यहाँ पे ट्रांजिशन करो प्रोवाइड करते हैं. तो आप देखिए ये T2 जो है ये फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, T1 जो है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, because now we have to introduce the transition curve. So the main circular curve will be shifted outside at some distance, which is called the shift of the circular curve. तो फिर उसकी इस इन के साथ एक ट्रांजिशन करो कनेक्ट होगा और सर्कुलर करो की इस इन के साथ एक ट्रांजिशन करो होगा, और इसका लेंथ जो है ये थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग ये पॉइंट माइंड में रखें that whenever you are introducing या whenever you are designing a transition curve along with the circular curve, then the main circular curve will be shifted outside. मीन ये अगर इंटरसेक्शन एंगल है ना, तो इंटरसेक्शन एंगल से आउटसाइड जो है मेन सर्कुलर कर्व शिफ्ट होगा. ठीक है, और उसके लिए हम फाइंड करते हैं कि कितने डिस्टेंस पे वो शिफ्ट होगा. अगेन दैट विल बी डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द कर्व एंड लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, उस पे डिपेंड होता है. ठीक है, कि एक सर्कुलर कर्व के साथ आपने कितना ट्रांजिशन कर्व डिजाइन करना है, तो मेन सर्कुलर कर्व को कितना शिफ्ट करना होगा कि रिक्वायर्ड लेंथ का जो ट्रांजिशन कर्व है वो प्रॉपरली उनके साथ इंट्रोड्यूस हो जाए. क्लियर हो गए जी? Is it clear? Yes. Yes, sir. अच्छा, ओके. ये लेक्चर जो है ये काइंड ऑफ उसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व है, इक्वेशंस हैं, तो काइंडली अटेंटिवली इसको अटेंड करें. अगर कोई क्वेश्चन है तो बीच में आप पूछें. ठीक है, अच्छा. नाउ ये जो ट्रांजिशन करो है, सबसे पहले इसकी जो स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन होता है, काइंडली इसके ऊपर फोकस करें कि किस तरह हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं.
देखें, सपोज if we have one line of communication, for example it is started from this point, so A is our starting point of the line of communication. Okay, now for example this is the B point at which we are going to deflect from the first line of communication. Okay, so then we will continue in BC direction here. Now here, this is for example the delta, which is the total angle of deflection. Here we have the intersection angle. Okay, now see, for example, if this is our original circular curve, and now we want to introduce a transition curve along with this circular curve. ठीक है, तो ट्रांजिशन करो जो है वो यहां से स्टार्ट होगा। देखिए इस पॉइंट से सपोज ट्रांजिशन करो इस तरह स्टार्ट होगा। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस पॉइंट, फॉर एग्जांपल द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजिशन करो दैट इज T1 पॉइंट, बिकॉज नाउ ये जो है ये हमारा फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट होगा, बिकॉज कंपोजिट करो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ओवरऑल टेंजेंट के साथ करो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, सो दैट इज द T1 पॉइंट। ठीक है, ये जो लास्ट पॉइंट है ट्रांजिशन करो का दैट इज E पॉइंट, विच इज आल्सो कॉल्ड द जंक्शन पॉइंट। ठीक है, करो जो है इस पॉइंट के बाद जो है फिर क्या होगा, हमारे पास सिंपल सर्कुलर करो होगा। ठीक है, E इज द जंक्शन पॉइंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो F पॉइंट है ये अनदर जंक्शन पॉइंट है, बिकॉज इस पॉइंट के बाद फिर दूसरा ट्रांजिशन करो स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा अब देखें, सपोज अगर ये जो E पॉइंट है ना, इस पॉइंट तक अगर हम एक परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ करने मेन टेंजेंट से, ओके ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है सपोज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय y, दैट इज द परपेंडिकुलर ऑफसेट टू द जंक्शन पॉइंट। ठीक है, सपोज ये जो पॉइंट है, जो जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट से परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ किया हुआ है, सपोज दैट इज E डैश पॉइंट, एंड सपोज this is the distance between T1 and the point at which we have drawn an offset to the junction point. Suppose ये हमारे पास x है, तो actually ये x और y क्या होंगे, these will be the coordinates of E point। ये कि E जो है T1 से कितना along the tangent line इस साइड पे है और कितना E जो है परपेंडिकुलरली टेंजेंट से इस साइड पे है। ठीक है, नाउ सपोज along the curve if we take any point आप ले रहे, सपोज हमने एक M पॉइंट लिया हुआ है और ये T1 पॉइंट से फॉर एग्जांपल L डिस्टेंस पे है, ये जो स्मॉल l है that is representing the position of M point along the transition curve. Okay, suppose that is represented by L, and suppose the radius at this point of the transition curve is rho, because radius क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं ना, इनफाइनाइट स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा और R जो है वो जंक्शन पॉइंट पे होगा। ठीक है, सो along the length रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन करो जो है वो वेरिएबल है ना, तो m जो है ये हमने एक पॉइंट एज्यूम किया हुआ है along the transition करो at a distance of small l from T1 point having radius rho। m पॉइंट जो है इसका रेडियस क्या है, रो है। ठीक है, अब देखें अगर इस m पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं ट्रांजिशन करो को, ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है ना, दैट इज अ टेंजेंट टू द ट्रांजिशन करो एट पॉइंट M। तो ये मेन टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाएगा
सपोज दैट इज पाई, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल जंक्शन पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये मेन टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाएगा सपोज दैट इज पाई 1। एंड रिमेंबर ये मैक्सिमम एंगल होगा, ये पाई 1 के बाद यहाँ इस साइड पे जो एंगल्स होंगे वो इससे छोटे होंगे, स्मॉल होंगे, ठीक है। तो पाई जो है दैट इज द एंगल ऑफ मेन टेंजेंट विद द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द ट्रांजिशन करो, और पाई 1 जो है दैट इज द एंगल ऑफ द मेन टेंजेंट विद द टेंजेंट एट जंक्शन पॉइंट। मीन अगर जंक्शन पॉइंट पे आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ले तो मेन टेंजेंट के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, दैट इज पाई 1, ठीक है। अच्छा, ई पॉइंट से एफ पॉइंट तक ये हमारा सर्कुलर करो है, तो यहाँ पे इसको अगर हम ज्वाइन कर ले तो ये ओरिजिन होगा और दैट विल बी इट्स रेडियस, और उसके बाद अगेन वी हैव द ट्रांजिशन करो, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सर क्लियर। अच्छा, अब देखिए इसकी जो पैरामीटर्स हैं, सो एज वी हैव डिस्कस्ड, हमारे पास ये एक T1b है, सो दैट इज द इनिशियल मेन टेंजेंट, ठीक है। T1 जो है दैट इज द स्टार्ट और द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजिशन करो। ई पॉइंट जो है, डायग्राम को आप देखते जाए ना, ई पॉइंट जो है दैट इज द पॉइंट ऑफ जंक्शन ऑफ द ट्रांजिशन करो विद द सर्कुलर करो। मीन ई पॉइंट पे ट्रांजिशन करो खत्म हो रहा है और सर्कुलर करो जो है वो स्टार्ट हो रहा है, सो ई इज द जंक्शन पॉइंट। एम जो है ये आप ट्रांजिशन करो पे एनी पॉइंट ले ले, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द ट्रांजिशन करो, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एल मीटर फ्रॉम T1 पॉइंट, और उसी पॉइंट पे सपोज रेडियस जो है वो रो है, ठीक है। द रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन करो एट एम पॉइंट, आर जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर करो, ठीक है। पाई जो है दैट इज द एंगल ऑफ द मेन टेंजेंट टू द टेंजेंट एट पॉइंट एम, ठीक है। अगर एम पॉइंट पे आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लें तो मेन टेंजेंट या इनिशियल टेंजेंट के साथ उसका एंगल जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। पाई 1 जो है दैट इज द एंगल बिटवीन द मेन टेंजेंट इन द टेंजेंट एट पॉइंट ई, ठीक है। अगर जंक्शन पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें तो मेन टेंजेंट के साथ ये जो एंगल बना रहा है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई 1, ठीक है। दैट इज आल्सो कॉल्ड द स्पाइरल एंगल, रिमेंबर इसको स्पाइरल एंगल भी कहते हैं। अच्छा, कैपिटल एल जो है दैट विल रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करो, टोटल लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करो, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा जो है ये हमारे पास टोटल डिफ्लेक्शन एंगल है, आई जो है ये हमारे पास टोटल इंटरसेक्शन एंगल है, ठीक है। नाउ द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट जो है ट्रांजिशन करो का या स्पाइरल करो का, वो क्या है, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट शैल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द करो। देखिए T1 पॉइंट बिगिनिंग पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे रेडियस क्या है, इनफाइनाइट है, तो जितना आप along द लेंथ जा रहे हैं तो रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। स्टार्टिंग पॉइंट पे इनफाइनाइट है और जंक्शन पॉइंट पे रेडियस आर है, सो मतलब यह है कि आप जब along द करो जा रहे हैं तो रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। So that is the fundamental requirement, that is the basic requirement of the spiral curve or the transition curve, that the radius of curvature at any point will be inversely proportional to the distance from the beginning of the curve, ठीक है। So therefore we can say that radius at any point of the transition curve
will be inversely proportional to the length. ठीक है, या लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। मीन अगर आप अलोंग द ट्रांजिशन करो जा रहे हैं ना, तो लेंथ इंक्रीज होगा और रेडियस जो है वो डिक्रीज होगा। ये बेसिक इक्वेशन है या बेसिक स्टेटमेंट है फॉर द डिराइवेशन ऑफ द सेटिंग आउट इक्वेशन ऑफ द ट्रांजिशन करो। ठीक है, so now we can write this equation that rho is equal to m into 1 over L, because m is the constant of proportionality, so rho is equal to ml। ये m जो है ये हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, so radius at any point of the transition curve will be equal to constant divided by position of that point from t1। या फिर ये जो स्मॉल m है ना, that is just representing the constant of proportionality, because here we have discussed that radius is inversely proportional to length। so जब आप proportionality sign को remove करते हैं तो हम एक constant लगाते हैं ना कि कितने अमाउंट पे ये proportionality है, इन दो पैरामीटर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कितना है, वो प्रोपोर्शन कितना है। ठीक है, वो प्रोपोर्शनलिटी कितनी है, so that is represented by this constant। okay, also एक और इक्वेशन है कि ये जो phi एंगल है, mean the angle of the main tangent with the tangent at any point on the transition करो। अगर ट्रांजिशन करो कि किसी भी पॉइंट पे आप जो है एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें, तो मेन टेंजेंट के साथ ये कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, सो फॉर ऑल द करो द चेंज इन दैट एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ। मीन अगर आप अलोंग द लेंथ जा रहे हैं ना, तो जितना चेंज एंगल में आ रहा है उतना चेंज इस एंगल में आएगा, बिकॉज आप अलोंग द लेंथ जाएंगे तो आपके पास पॉइंट चेंज होगा, पॉइंट चेंज हो रहे हैं, तो अगर उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर ले तो उसका एंगल डिफरेंट होगा। तो चेंज इन दैट एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ। तो जितना लेंथ इंक्रीज हो रहे हैं ट्रांजिशन करोगा उतना ये एंगल इंक्रीज होगा, और जंक्शन पॉइंट पे ये एंगल जो है ये π1 होगा, which will be called the spiral angle। ठीक है, इसको स्पाइरल एंगल फिर कहते हैं। अच्छा, now from this equation we can say that change in that angle will be equal to, again we will have a kind of constant, and that constant is, remember यहाँ पे क्या है, कर्वेचर है। देखिए जितना आप अलोंग द लेंथ जा रहे हैं ना, तो रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कर्वेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो रेट ऑफ कर्वेचर जो है वो कांस्टेंट होगा। मतलब ये है कि ये एंगल क्यों इंक्रीज होगा ना, हम कह रहे हैं ना कि T1 पॉइंट से जब आप E पॉइंट की तरफ जाएंगे तो एनी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ले लें तो मेन टेंजेंट के साथ जो एंगल होते हैं दैट इज पाई। तो हमने ये डिस्कस की कि ये जो एंगल है ये अलोंग द लेंथ इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, बिकॉज कर्वेचर इंक्रीज होगा। अगर कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है तो टेंजेंट का पोजीशन चेंज होगा, तो ये एंगल इंक्रीज होगा। नाउ अलोंग द लेंथ वो चेंज इन कर्वेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। मीन अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप चले जाए तो कितना कर्वेचर आपने अचीव किया है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ वी कैन से दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, नाउ एक्चुअली फिर कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर जो है दैट इज इक्वल टू 1 ओवर द रेडियस। ये अगर रेडियस ज्यादा हो तो कर्वेचर कम होगा, अगर रेडियस कम हो तो कर्वेचर ज्यादा होगा। अगेन ये दोनों एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो नाउ सी फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट d थीटा डिवाइड बाय dl इज इक्वल टू कर्वेचर। ठीक है,
या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ दिस एंगल डिवाइड बाय द लेंथ ऑफ द कर्व इज इक्वल टू कर्वेचर ऑफ द कर्व, ठीक है, या चेंज इन द एंगल दैट पाई एंगल, रिमेंबर कि पाई एंगल क्या है, चेंज इन द पाई एंगल टू द चेंज इन द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व दैट इज कॉल्ड द कर्वेचर, या ये कर्वेचर के बराबर होता है, ठीक है। और कर्वेचर क्या है, दैट इज इक्वल टू 1/ρ, बिकॉज हम एम पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, एम पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर लें तो मेन टेंजेंट के साथ इसका एंगल पाई है और इसका डिस्टेंस जो है स्मॉल एल है और इसका रेडियस रो है, तो इस पॉइंट पे चेंज इन द एंगल डिवाइड बाय चेंज इन द लेंथ, या दूसरी हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आप डिफरेंशियल अमाउंट ले लें ना, स्मॉल से स्मॉल अमाउंट ले लें, सो डिफरेंशियल ऑफ एंगल पाई डिवाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ एंगल लेंथ will be equal to curvature at this point, and curvature at this point is equal to 1/radius of this point, ठीक है। so we can say that d theta या d pi is equal to, ये 1/ρ किसके बराबर है, देखें 1/ρ यहां से किस चीज के बराबर हो जाएगी फिर जी, it is 1/r क्या सर? नहीं, देखिए यहाँ पे है रो इज इक्वल टू 1/l, या रो इज इक्वल टू m डिवाइड बाई l, ठीक है। यहाँ से ये देखें हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि 1/ρ इज इक्वल टू l डिवाइड बाई m, ठीक है। तो ये l बाई m, या ये क्या है l इंटू 1/m, तो ये 1/m फिर कांस्टेंट है ना, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि सपोज l इसको n कहते हैं, सपोज समझ आ रहे हैं ना, ये 1/m जो है ये फिर आपके पास एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखें nl इंटू dl, क्लियर होगा ये इक्वेशन, मीन d पाई इज इक्वल टू, आप कंफ्यूज ना हो जाए इसके साथ, सी d पाई इज इक्वल टू 1/ρ इंटू dl, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि d पाई इज इक्वल टू 1/ρ जो है दैट इज इक्वल टू nl, या फिर रो इज इक्वल टू m/l है ना, तो अगर एक साइड को आप उल्टा कर ले तो दूसरा साइड भी उल्टा हो जाएगा, मीन 1/ρ विल बी इक्वल टू l/m, या l मल्टीप्लाइड बाई 1/m, तो 1/m एक कांस्टेंट है ना, तो ये भी फिर एक कांस्टेंट आ जाएगा, मीन सपोज अगर 1/3 है तो इससे भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, सो ये ln dl हो जाएगा, ठीक है। नाउ सपोज इंटीग्रेट इट, ठीक है। सो देखें m पॉइंट पे या m पॉइंट तक एंगल कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, ये पाई t1 पॉइंट पे एंगल क्या होगा, देखें अगर t1 पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें तो ये ओरिजिनल टेंजेंट के साथ कोइंसाइड होगा, सो व्हाट विल बी द पाई एंगल, जी पाई एंगल क्या होगा फिर, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें तो ये ओरिजिनल टेंजेंट के साथ कोइंसाइड होगा, सो व्हाट विल बी एंगल पाई, सर 0 होगा। 0 होगा, सो एंगल इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू पाई फ्रॉम t1 टू पॉइंट m, सो इसको ये लिमिट अप्लाई कर लें इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए n कांस्टेंट है,
ठीक है, ये एल जो है ये चेंज हो रहे हैं 0 से एल तक। ठीक है, T1 पॉइंट पे लेंथ 0 है ना, और M पॉइंट पे लेंथ L है। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट कर ले तो यहां से क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा जी, एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। एल स्क्वायर डिवाइड बाई, वी कैन से दैट 2 एल, सर। हाँ एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे वो कांस्टेंट होगा ना m। ठीक है, अच्छा सपोज दिस इज इक्वेशन 1, सॉरी यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये n है, जो भी वैल्यू आप इसको दे सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि ये m हो या n हो। ठीक है, n इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखिए जंक्शन पॉइंट पे लेंथ क्या होता है, L इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करो, और एंगल क्या होता है, पाई इज इक्वल टू पाई 1। ये मैक्सिमम एंगल होगा, बिकॉज जंक्शन पॉइंट जो है ये ट्रांजिशन करो का आखिरी पॉइंट है। तो अगर इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें तो मेन टेंजेंट के साथ इसका जो एंगल होगा दैट विल बी पाई 1, दैट इज कॉल्ड द स्पाइरल एंगल, ये मैक्सिमम एंगल होगा। सो एट जंक्शन पॉइंट पाई विल बी इक्वल टू पाई 1 and length will be equal to capital L, mean the total length of the transition करो। और जंक्शन पॉइंट पे रो क्या होगा, that will be R, mean रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, so we can say that at this point, mean इस पॉइंट पे ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे हमने जो किया था कि 1/रो इज इक्वल टू एल एन, तो इस जंक्शन पॉइंट पे ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू एन एल, किस तरह हो जाएगा। देखिए ये जो है 1/रो इज इक्वल टू एल एन, मीन ये इक्वेशन है एट एनी पॉइंट, रो इज इक्वल टू एन एल। ठीक है, अगर एनी पॉइंट आप ले ले ट्रांजिशन करो पे, तो उसका रेडियस रो है और T1 पॉइंट से वो स्मॉल एल डिस्टेंस पे, तो ये रिलेशनशिप है, हमने इसको डिराइव किया ना यहाँ पे। ठीक है, तो सिमिलरली एट जंक्शन पॉइंट द रेडियस इज r and the length is capital L, so then we can say that 1/r is equal to nl, या n is equal to 1/rl। ये इक्वेशन, ये कांस्टेंट की वैल्यू आ गई ना, कि यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 1/, रेडियस ऑफ द सर्कुलर करो मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करो। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को, या ये जो वन इक्वेशन है फॉर द जंक्शन पॉइंट, ये इक्वेशन क्या होगा जी, कोई बता सकता है। जंक्शन पॉइंट के लिए ये इक्वेशन हम किस तरह लिखेंगे, जंक्शन पॉइंट के लिए। सर इसमें एन की वैल्यू डालेंगे आर एल, देखिए और पहले एल ये स्क्वायर। देखें, पाई विल बी इक्वल टू, एन की जगह पुट कर लें आर एल, तो हमारे पास ये आ जाएगा एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2RL। ठीक है, नाउ एट जंक्शन पॉइंट spiral angle will be equal to L square divided by 2RL, या pi 1 will be equal to L divided by 2R, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। पहले जो है आप अंडरस्टैंड कर ले कि ये पाई क्या है। पाई इज द deflection of the tangent at any point on the transition करो from the main first tangent, मीन अगर ट्रांजिशन करो कि
किसी भी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें तो मेन टेंजेंट के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, दैट इज एंगल पाई। ठीक है, इट विल बी मैक्सिमम एट द जंक्शन पॉइंट, कि अगर जंक्शन पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें तो मेन टेंजेंट के साथ इसका जो एंगल होता है दैट विल बी पाई 1, और इसको स्पाइरल एंगल कहते हैं। एंड इट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करो डिवाइड बाय 2 टाइम ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर करो। ठीक है, ये रेडियन में आएगा आपके पास, ये पॉइंट माइंड में रखें कि इससे जो आंसर आएगा वो रेडियन में होगा। ठीक है, और ये जनरल इक्वेशन है ना कि T1 पॉइंट से सपोज स्मॉल एल डिस्टेंस पे आप हम एक पॉइंट ले लें तो उसकी टेंजेंट का मेन टेंजेंट के साथ कितना एंगल होगा, सो इट विल बी इक्वल टू दिस वन, मीन स्मॉल एल जो है ये एनी डिस्टेंस है T1 पॉइंट से इन डिवाइड बाय 2 और L, so that will be the deflection angle of tangent at any point on the transition करो with the main tangent। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन जो है ये बेसिक इक्वेशंस आ गए हमारे पास ट्रांजिशन करो के लिए। यहां तक क्लियर हो गया जी? जी सर। यस सर। तो ये इक्वेशन जो है ये याद रखें, अगर कहीं भी मैं आप लोगों से पूछूं कि पाई किसके बराबर है तो आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। ठीक है, पाई या पाई 1 जो है ये किसके बराबर है। ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू स्मॉल एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर एल, और पाई 1 इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय 2 आर, ये इसके बराबर है। ठीक है, अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज दैट टू सेट आउट द ट्रांजिशन करो फॉर एग्जांपल बाय अपसेट मेथड। ठीक है, सपोज अगर ये वो मेन टेंजेंट है दैट इज द T1 पॉइंट, यहां से जो है ट्रांजिशन करो स्टार्ट होगा, और ये E जो है दैट इज द जंक्शन पॉइंट एट विच द ट्रांजिशन करो विल मीट विद द सर्कुलर करो। ठीक है, सपोज यहाँ पे वो B पॉइंट है, यहाँ पे A पॉइंट है। ठीक है, नाउ इफ दिस ट्रांजिशन करो is to be set out or it to be set out or range out by upset from the tangent। ओके, तो अगर हम टेंजेंट से अपसेट लेते हैं तो क्या होगा, देखें कि अगर T1 से हम कितने डिस्टेंस पे चले जाएं, x डिस्टेंस पे सपोज आप चले जाएं और उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर अपसेट ले ले y, तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा ना। सपोज दैट इज वो m पॉइंट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये T से x डिस्टेंस पे along the tangent x डिस्टेंस पे है और फिर वहां से परपेंडिकुलरली y डिस्टेंस पे है, तो ये x और y क्या होंगे, these will be the coordinates of the m point। समझ आ रहा है ना, ये तो ये हमारे पास क्या होंगे एक्चुअली दी, इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, एक्सिस कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, प्लेन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड होगा फॉर द सेटिंग आउट ऑफ द कर्व, बिकॉज ऑन द ग्राउंड आपके पास T1 पॉइंट गिवन है ना, तो T1 पॉइंट से आप x डिस्टेंस पे जाएं और वहां से परपेंडिकुलरली y डिस्टेंस पे आ जाएं, तो आपके पास ट्रांजिशन कर्व का एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द सेटिंग आउट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व बाय ऑफसेट मेथड, कि अगर टेंजेंट पॉइंट से आप x डिस्टेंस पे चले जाएं along the मेन टेंजेंट और फिर वहां से आप परपेंडिकुलर अपसेट ले लें, y डिस्टेंस पे आप आ जाए, सो यू विल गेट द पॉइंट m। ठीक है, नाउ जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ है, सपोज m जो है ये T1 पॉइंट से स्मॉल l डिस्टेंस पे है। ठीक है, अच्छा, अब अगर एक डिफरेंशियल लेंथ पे हम एक और पॉइंट ले लें, पॉइंट n, तो इसके ये y कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, y प्लस
सिग्मा वाई। समझ आ रहे हैं? ठीक है, अगर एन पॉइंट जो है ये सिग्मा एल डिस्टेंस पे है एम से, तो इसका ये परपेंडिकुलर अपसेट क्या होगा, y प्लस सिग्मा एल। ठीक है, और सपोज ये सिग्मा x है, तो इसका ये x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x प्लस सिग्मा x। ठीक है, अब देखें, अगर m पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर लूं, तो मेन टेंजेंट के साथ इसका ये जो एंगल होगा दैट विल बी पाई। और n पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर लूं, तो मेन टेंजेंट के साथ इसका जो एंगल होगा दैट विल बी पाई प्लस सिग्मा पाई। थोड़ा सा ज्यादा होगा ना, बिकॉज इनका डिस्टेंस ज्यादा है T1 पॉइंट से, तो हम वो डिफरेंशियल ले रहे हैं, स्मॉलेस्ट ले रहे हैं, इतना ले रहे हैं कि उसमें वो चेंजेस जो है उसको हम नेग्लेक्ट कर सके, कर्वेचर का, सुपर एलिवेशन का, और वी कैन से दैट रेडियल एक्सेलरेशन का। n और m के दरमियान डिफरेंशियल डिस्टेंस है, सो दैट द चेंजेस में बी नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पे हम जो इक्वेशन डिराइव करेंगे वो आइडियल होगा, रियल नहीं होगा, बिकॉज हम इसको एजम्पशन पे डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और ये जो हमारे पास अगर T1 को हम डायरेक्टली देखें, T1 को हम डायरेक्टली m के साथ ज्वाइन कर लें, समझ आ रहा है कि नहीं, T1 को डायरेक्टली m के साथ ज्वाइन कर लें, तो यहाँ पे जो एंगल होगा सपोज दैट इज अल्फा। अल्फा और पाई के दरमियान आप लोगों को डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। पाई जो है दैट इज द एंगल ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द ट्रांजिशन करो विद द मेन टेंजेंट। अगर एनी पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन करो पे आप एक टेंजेंट ले लें, तो मेन टेंजेंट के साथ जो एंगल होते हैं वो पाई होगा। ठीक है, और करो पे किसी भी पॉइंट को अगर T1 के साथ आप स्ट्रेटली ज्वाइन कर लें, तो टेंजेंट के साथ जो एंगल होते हैं दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, और उसको डिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। अल्फा को डिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। ठीक है, जिस तरह हम सिंपल करोज में कॉर्ड के साथ टेंजेंट का एंगल लेते थे, तो एक हमारे पास टेंजेंशियल एंगल्स होते थे और एक हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल्स होते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे ये जो पाइज हैं ये टेंजेंशियल एंगल्स हैं, और अल्फाज जो हैं ये डिफ्लेक्शन एंगल्स हैं। ठीक है, नाउ एम पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये जो हमने ये एम पॉइंट लिया हुआ है ना करो पे, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एंड वाई, और एन पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स प्लस सिग्मा एक्स एंड वाई प्लस सिग्मा वाई। ये एन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, नाउ देखिए ये इस तरह हम लिख सकते हैं कि cos ऑफ दैट टेंजेंशियल एंगल दैट विल बी इक्वल टू, देखिए ये cos ऑफ टेंजेंशियल एंगल जो है ना, कोई बता सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा। एक हमारे पास ये along द लेंथ, अगर हम जा रहे हैं ट्रांजिशन करो की ऊपर, तो ये हमारा एज अ हाइपोटेन्यूज कंसिडर होगा, और along द टेंजेंट अगर हम जा रहे हैं तो ये हमारा बेस कंसिडर होगा। ठीक है, तो cos पाई जो है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन द हॉरिजॉन्टल डिवाइड बाय चेंज इन द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मीन ये जो टेंजेंशियल एंगल है ना, ये जो पाइज है, इसका cos that will be equal to change in the x-axis divided by change in the hypotenuse. So hypotenuse जो है that we are taking along the length. Similarly, sin pi जो है that will be equal to change in the y या change in that perpendicular offset to the change in the length. Suppose अगर आपके पास
एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ आप जा रहे हैं ना, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ आप जा रहे हैं, तो आपके पास लेंथ में भी चेंज आएगा, वाई में भी चेंज आएगा, और एक्स में भी चेंज आएगा। तो चेंज इन एक्स डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ, that will be equal to cos of angle pi, और change in y divide by change in L, that will be equal to sin of pi। ठीक है, अच्छा क्लियर है कि नहीं जी, समझ आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, now we can say that dx is equal to dl cos pi। ठीक है, similarly we can say that dy is equal to dl sin pi। क्लियर? अब देखें, साइन थीटा जो हमारे पास होता है, इसका बाइनोमियल ओपनिंग जब हम करते हैं, या इसका एक्सप्रेशन जो होता है, आपको पता है किसके बराबर होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? थीटा माइनस थीटा क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा 7 डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इक्वेशन कभी पढ़ा है आप लोगों ने एफएससी में? जी, यस सर। cos पाई किसके बराबर होता है, या cos थीटा किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस थीटा 6 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरह होता है, ये इसकी बाइनोमियल ओपनिंग्स है। ठीक है, नाउ सी यहां पे ये हमारे पास क्या होगा? dx इज इक्वल टू dl into cos पाई। तो cos पाई किसके बराबर हो जाएगा? इस चीज की ना, 1 माइनस पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस पाई 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अब देखिए, अगर हायर टर्म को हम नेग्लेक्ट कर लें और ओनली फर्स्ट टर्म को कंसिडर कर लें, ठीक है, हायर टर्म को आप नेग्लेक्ट कर लें, बिकॉज थीटा जो है ये स्मॉल एंगल होते हैं, तो उसको अगर आप 2 फैक्टोरियल पे डिवाइड कर ले तो ये फर्दर स्मॉल हो जाएगा। सिमिलरली इसके साथ ये वैल्यू आप देखिए, ये माइनस है, इसके साथ ये वैल्यू प्लस कर ले, फिर इससे ये माइनस कर ले, फिर उसके साथ नेक्स्ट प्लस कर ले, तो ये प्लस माइनस जब आप कर ले स्मॉलेस्ट वैल्यू को, तो ये फर्दर स्मॉल से स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। सो dx इज इक्वल टू dl। ठीक है, dx इज इक्वल टू dl। और एक और हम भी assumption हम करते हैं ना, कि अगर एंगल जो है स्मॉल से स्मॉलेस्ट हो, तो फिर हम cos थीटा क्या लेते हैं? 1 के बराबर लेते हैं ना, और साइन थीटा क्या लेते हैं जी? जब एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा थीटा की बराबर लेते हैं, और cos थीटा 1 के बराबर लेते हैं। वो एक्चुअली इन बाइसेक्ट इन ये जो एक्सपेंशन की बेस पे लेते हैं कि हायर टर्म को हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो यहां से cos थीटा जो है आपके पास 1 के बराबर आ जाते हैं। सिमिलरली ये जो dy है, dy विल बी इक्वल टू dl, और साइन पाई की जगह मीन अगर आप एक टर्म कंसिडर कर लें, हायर टर्म को आप नेग्लेक्ट कर लें, सो यू विल गेट पाई। ठीक है, या dy इज इक्वल टू पाई
N2 DL, ठीक है। नाउ जस्ट इसको इंटीग्रेट कर लें, इन इस टर्म को अगर आप इंटीग्रेट कर लें तो क्या आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू, जी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी इसकी यार, तो सिर्फ एल सर। x इज इक्वल टू l, ठीक है। यहाँ पे देखें dy इज इक्वल टू, पाई की जगह वो वैल्यू पुट कर ले जो प्रीवियस स्लाइड में हमने किया था, क्या रहा था जी, पाई किसके बराबर था, l स्क्वायर डिवाइड बाय Smart 2 L square divided by 2RL. RL एंड DL। अब इसको इंटीग्रेट कर ले तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, दूसरा टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, l क्यूब डिवाइड बाय 6RL, इस तरह आ जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर करो की ऊपर आप एनी डिस्टेंस पे, करो की ऊपर आप एनी डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लें तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो l के बराबर होगा, और उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो l क्यूब डिवाइड बाय 6RL के बराबर होगा, ठीक है। मीन अब देखें, अगर इस करो के ऊपर आपके पास एक m पॉइंट है, वो T1 से l डिस्टेंस पे है, तो उसका ये x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये इस l के बराबर होगा, और उसका ये अपसेट क्या होगा, दैट विल बी l क्यूब डिवाइड बाय 6RL, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पैराबोला। मीन अगर इन कोऑर्डिनेट्स की बेस पे आप एक करो ड्रॉ कर लें तो आपके पास जो ट्रांजिशन करो आएगा, इट विल बी अ पोर्शन या इट विल बी अ सेक्शन ऑफ क्यूबिक पैराबोला, ठीक है। जिस तरह हमारे पास सर्कल का एक इक्वेशन होता है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो सर्कल का इक्वेशन है। सिमिलरली ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हुए हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग, या ये जो वाई इक्वेशन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पैराबोला। नाउ इसकी बेस पे हम ये लिख सकते हैं ना कि y इज इक्वल टू, ये स्मॉल l किसके बराबर है, x के बराबर है ना, सो वी कैन राइट इट x क्यूब डिवाइड बाय 6RL, ठीक है। अब देखिए x अगर आप एनी डिस्टेंस ले लें, x आप एनी डिस्टेंस ले लें T1 से, तो उसका y अपसेट क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू क्यूब ऑफ दैट डिस्टेंस डिवाइड बाय 6 टाइम ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर करो एंड लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करो, ठीक है। सो दैट इज द अपसेट टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व फॉर अ डिस्टेंस x along the T1B। मीन अगर T1B पे आप x डिस्टेंस पे जाए तो वहां से आपने कितना अपसेट लेना होगा, ठीक है। अब देखें एक फिर हम इसको किस तरह सिट आउट करेंगे। ग्राउंड पे आपके पास क्या है, एक टेंजेंट लाइन है ना, ए बी टेंजेंट लाइन है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, T1 को लोकेट करना होगा। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे लेटर स्लाइड्स में कि T1 को आप किस तरह लोकेट करते हैं, लेकिन ये फर्स्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन तो आपके पास गिवन है ना अर्थ सरफेस पे, उसके ऊपर आप T1 पॉइंट लोकेट कर लें। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ट्रांजिशन करो के लिए पॉइंट्स लगाने हैं, ट्रांजिशन करो के लिए डिफरेंट पॉइंट्स लगाने हैं। तो यहां से आप स्टार्ट ले लें, सपोज x जो है, देखिए पहले से आपके पास रेडियस ऑफ सर्कुलर करो गिवन होगा, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन करो गिवन होगा, जो बेसिक पैरामीटर्स है वो गिवन होंगे। अब T1 पॉइंट से सपोज आप 2 फीट डिस्टेंस पे जाएं, 5 फीट डिस्टेंस पे जाएं,
उसके लिए y कैलकुलेट कर लें इस इक्वेशन से, ठीक है। तो वो x डिस्टेंस पे आप जाएं, इस पॉइंट से परपेंडिकुलरली आ जाएं, एक पॉइंट लगाएं, फिर दूसरी x डिस्टेंस पे जाएं, उसके लिए y कैलकुलेट कर लें, एक पॉइंट लगाएं, फिर x को चेंज कर लें, उसके लिए y कैलकुलेट करके एक पॉइंट लगाएं, फिर x को चेंज कर लें, उसके लिए y कैलकुलेट कर लें। मैक्सिममली x आप कितना ले सकते हैं जी? मैक्सिममली x आप कितना ले सकते हैं? ए बी डिस्टेंस के बराबर। नहीं, क्यों ए बी डिस्टेंस के बराबर यार? ये L के ट्रांजिशन करो है, मैक्सिमम l के बराबर ले सकते हैं। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है हुआ था, x इज इक्वल टू l एंड y वाज इक्वल टू l क्यूब डिवाइड बाय 6rl। तो ये l क्या है? दैट इज एक्चुअली द डिस्टेंस अलोंग द ट्रांजिशन करो। तो ट्रांजिशन करो का मैक्सिमम हमारे पास क्या होता है? मैक्सिमम लेंथ l होता है ना, कैपिटल L। तो x जो है मैक्सिममली आप लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करो पे आप जा सकते हैं, तो उसके लिए आप y कैलकुलेट कर लें। अब देखिए इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर लेंगे, सो यू विल गेट योर ट्रांजिशन करो। और ये जो ट्रांजिशन करो आपके पास आ जाए आएगा, ये क्यूबिक पैराबोलिक का एक सेक्शन होगा, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड द फ्रूट ट्रांजिशन करो। इसको फ्रूट ट्रांजिशन करो कहते हैं, फ्रूट ट्रांजिशन करो, या इसको ईजमेंट करो कहते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें तो इस ये जो करो आया हुआ है, इसके लिए हमने एजम्पशन क्या की थी? हमने फर्स्ट टर्म को सेलेक्ट किया था। तो x जो था दैट वाज इक्वल टू l एंड y वाज इक्वल टू l क्यूब डिवाइड बाय 6rl, ठीक है। तो ये स्मॉल l की जगह आप x पुट करें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा, एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पैराबोला। तो सेटिंग आउट का मेथड हमने डिस्कस की कि आप जो है पहले T1 पॉइंट लोकेट कर लें। हम डिस्कस करेंगे कि T1 किस तरह लोकेट करते हैं। एक्चुअली वही मेथड है कि B से आप BT1 डिस्टेंस पे आ जाए, लेकिन ये BT1 डिस्टेंस कितना होगा? ये वो सिंपल टेंजेंट लेंथ के बराबर नहीं होगा, बिकॉज अब यहाँ पे ट्रांजिशन करो इन्वॉल्व है, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे इसको लेटर ऑन। तो T1 पॉइंट आपके पास ग्राउंड में गिवन है, उससे आप x डिस्टेंस पे जाए, उसके लिए y कैलकुलेट कर ले, फिर दूसरे x पे जाए, उसकी y कैलकुलेट कर ले, फिर x पे जाए, फिर y कैलकुलेट कर लें। So you will get different points on the ground, and once you join those points, you will get your required transition curve. And the curve which is ranged out by this equation, that is called the fruit transition curve, or that is called the easement transition curve, or that is called the we can say that इसको cubic parabola भी कहते हैं, cubic parabola, ठीक है। ये क्लियर हो गया जी? यस सर। अच्छा, दूसरा टाइप जो है वो ये है, वही इक्वेशन जो है आप या डायग्राम जो आप माइंड में रखें। देखिए कि ये हमारे पास वो रेयर टेंजेंट है, इनिशियल टेंजेंट है, फर्स्ट टेंजेंट है। सपोज ये T1 पॉइंट है, यहाँ से हमारा ट्रांजिशन करो स्टार्ट होगा। तो किसी भी पॉइंट को आप ले ले, M पॉइंट को, ये L डिस्टेंस पे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इसका x कोऑर्डिनेट है और ये इसका y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने जो दिया हुआ है कि dx इज इक्वल टू dl cos पाई एंड dy इज इक्वल टू dl sin पाई। अब देखें dx इज इक्वल टू dl cos पाई, ठीक है, और dy इज इक्वल टू dl sin पाई, ठीक है। नाउ सपोज पहले हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को कंसिडर किया था। अब अगर हम दो टर्म को एज्यूम कर लें, दो टर्म्स को, फर्स्ट टू टर्म को कंसिडर कर लें, बाकी जो है उनको निग्लेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, dx इज इक्वल टू dl into 1
माइनस पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर cos पाई के लिए हम फर्स्ट दो टर्म एज्यूम कर ले, प्रीवियसली हमने एक टर्म एज्यूम किया था, बाकी को हमने नेग्लेक्ट किया था। नाउ अगर आप फर्दर एक्यूरेसी अचीव करना चाहते हैं, मीन जितने आपके पास ये टर्म ज्यादा होंगे उतना आपका सोल्यूशन एक्यूरेट होगा। तो नाउ सपोज वी हैव एज्यूम 2 टर्म्स, सिमिलरली इसकी भी 2 टर्म एज्यूम कर लें। तो बी वाई इज इक्वल टू डी एल इंटू पाई माइनस पाई क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, इस तरह आ जाएगा। dx इज इक्वल टू 1 माइनस, ये पाई स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, वो पाई किसके बराबर था, दैट वाज स्मॉल एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और एल, तो ये क्या हो जाएगा L4 डिवाइड बाय ये 4 आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये एक 2 फैक्टोरियल है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 8 आर स्क्वायर एल स्क्वायर। क्लियर हो गया ये समझ आ गई कि नहीं जी? यस सर। पाई जो है दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर एल, तो पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा एल पावर 4 डिवाइड बाई 4 आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और एक ये 2 फैक्टोरियल वाला 2 है, तो ये 8 आर स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली डी वाई विल बी इक्वल टू, ये पाई जो है इट विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर एल माइनस ये पाई क्यूब जो है इट विल बी इक्वल टू एल पावर 6 डिवाइड बाय, देखें 2 क्यूब क्या हो जाएगा 8, मीन 8 आर क्यूब एल क्यूब, और ये 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है जी? 3 फैक्टोरियल 6 सर। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 आर क्यूब एल क्यूब, 48 सर। हाँ 48, सॉरी, 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 48। ठीक है, अच्छा नाउ इसको इंटीग्रेट कर लें जी, तो क्या आ जाएगा dx इज इक्वल टू क्या होगा अभी ये 1 जब इंटीग्रेट हो जाए तो क्या आएगा इससे L, मीन ये 2 टर्म्स है ना, दोनों इंडिविजुअल इंटीग्रेट हो जाएंगे, तो देखें x इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म जब इंटीग्रेट हो जाए तो देखिए x विल बी इक्वल टू L माइनस L पावर 5 डिवाइड बाय 40 हो जाएगा ना, 40 होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। हाँ अच्छा, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर कांस्टेंट है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा y इज इक्वल टू एल क्यूब हो जाएगा, इन इसको आप इंटीग्रेट कर ले विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एल, सो एल क्यूब डिवाइड बाय 6 आर एल माइनस एल पावर 7 हो जाएगा डिवाइड बाय 336 आएगा इससे। ठीक है, एंड R3 डिवाइड बाई L3, ये पावर 7 हो जाएगा ना, फिर 7 जो है नीचे 48 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, सो यू विल गेट 336। क्लियर? यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू, इससे अगर L हम कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस L4
सॉरी L4 डिवाइड बाय 40 R स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है, ये x होगा। और y क्या आ जाएगा, देखें y इज इक्वल टू, इसमें अगर आप देखें L क्यूब डिवाइड बाय 6RL हम कॉमन ले सकते हैं, सो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 माइनस L4 डिवाइड बाय 56 इससे रह जाएगा। मीन अगर 6 आप कॉमन ले लें तो 36 30 और 33, यस, एंड R स्क्वायर एंड L स्क्वायर ये रह जाएगा, बिकॉज 6RL हमने कॉमन लिया y से, सो दैट विल बी अवर y। क्लियर हो गए कि नहीं? ठीक है ये। So Yes, sir. if we assume the first two terms of the sin and cos, तो देखिए जितने आप ज्यादा टर्म एज्यूम करें उतनी आपके पास एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो अगर हम फर्स्ट दो टर्म को कंसिडर कर लें तो हमारे पास x ये आएगा, y ये आ जाएगा, तो ये जो इक्वेशन होगा इट विल रिप्रेजेंट द क्यूबिक पैराबोला। अगर हम फर्स्ट दो टर्म को एज्यूम कर लें तो आपके पास x ये आ जाएगा और y ये आ जाएगा, ठीक है। So these are the coordinates of any point on the transition करो। देखिए ना, अगर आप किसी भी पॉइंट को आप ले लें along the transition करो तो ये T1 से आपने कितने डिस्टेंस पे लिया हुआ है, ठीक है, सपोज आपने 3 मीटर पे लिया हुआ है, तो इसका ये x कितना होगा और इसका y कितना होगा, तो उतने डिस्टेंस पे आप along the T1B आ जाएं और वहां से परपेंडिकुलरली इतना y आ जाए, सो यू विल गेट दैट पॉइंट ऑन द करो। तो इन कोऑर्डिनेट से आपके पास जो ट्रांजिशन करो आएगा दैट इज कॉल्ड द थ्रू ट्रांजिशन करो, या दैट इज कॉल्ड द क्लोथाइडल ट्रांजिशन करो। अगर आप लोगों को याद हो तो प्रीवियस क्लास में हमने क्विकली एक स्लाइड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रांजिशन करो डिस्कस की थे। क्यूबिक्स होते हैं, क्लोथाइडल होते हैं, लेमनिसिकेट्स टाइप के होते हैं। तो प्रीवियसली ये जो इक्वेशन होता है इससे जो ट्रांजिशन करो आपके पास आ जाते हैं दैट इज अ सेक्शन ऑफ द क्यूबिक पैराबोला। इन कोऑर्डिनेट से आपके पास जो ट्रांजिशन करो होते हैं इसको क्लोथाइडल ट्रांजिशन करो कहते हैं, या इसको ट्रू ट्रांजिशन करो कहते हैं, ठीक है। और दोनों करो की शेप में वी कैन से दैट देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द टू शेप ऑफ द करो, बिकॉज ये टर्म जो है ये बहुत छोटा टर्म्स होता है, वो स्मॉल टर्म होता है। तो दोनों करों की जो शेप्स होते हैं उसमें स्मॉल डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास क्यूबिक पैराबोला हो गया और एक जो है हमारे पास ये दूसरा जो है दैट इज द क्लोथाइडल पैराबोला या ट्रू पैराबोला, ठीक है। क्लियर हो गया ये? तो इसको आप किस तरह सेट आउट करेंगे, देखिए इस मेथड से जिस तरह हमने डिस्कस की ना। अगेन आपके पास सम बेसिक पैरामीटर जो है वो गिवन होंगे कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर करो कितना है और कितने लेंथ का आपने ट्रांजिशन करो डिजाइन करना है, ठीक है। तो देखें लेंथ आपके पास गिवन है ट्रांजिशन करो का, रेडियस भी गिवन है सर्कुलर करो का। सपोज दिस इज और टेंजेंट लाइन, फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है ट्रांजिशन करो स्टार्ट होगा, तो अब उसके लिए अपने ग्राउंड पे डिफरेंट पॉइंट्स लगाने हैं, ठीक है। तो आप देखें आप अपने लिए एल एज्यूम कर लें। सपोज अगर एल जो है हम 2 मीटर ले लें तो उसका एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा, उनको कैलकुलेट कर लें। तो T1 से एक्स डिस्टेंस पे जाएं और वहां से परपेंडिकुलरली वाई डिस्टेंस पे आ जाएं और एक पॉइंट लगाएं, ठीक है। फिर एल को चेंज कर लें, सपोज 4 मीटर कर लें, उसके लिए एक्स और वाई कैलकुलेट कर लें। तो T1 से एक्स डिस्टेंस पे जाएं और उसका परपेंडिकुलर अपसेट ले लें वाई। सिमिलरली
फिर एल को चेंज कर लें, सपोज 6 मीटर ले लें, उसका एक्स और वाई कैलकुलेट कर लें, तो T1 से एक्स डिस्टेंस पे जाएं और वहां उसका वाई अपसेट ले लें। सिमिलरली एल को चेंज करते जाए, तो मैक्सिमली यू कैन टेक एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करो। तो इस टाइम पे आपके पास जो एक्स आ जाएगा और वाई आ जाएगा, दैट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी, कौन से पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे ये जी? if L is equal to capital L, the total length of the transition करो, तो आपके पास जो x आएगा और y आएगा वो किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे जी? सर जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, लास्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, और जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें, सो यू विल गेट योर ट्रांजिशन करो। सो दिस इज द प्रैक्टिकल मेथड फॉर द arranging out or setting out of curve through these equations। और इससे जो ट्रांजिशन कर्व आएगा उसका जो शेप होगा उसको हम ट्रू पैराबोला कहते हैं या क्लोथाइडल पैराबोला कहते हैं, ठीक है, या क्लोथाइडल ट्रांजिशन कर्व कहते हैं इसको। तो ये दो फॉर्म्स हमने डिस्कस की। अच्छा, या तक अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर हो गए हैं? यस सर। अच्छा, नाउ थोड़ा सा और उसमें क्वेश्चंस हैं, इसको क्लियर कर दूं मैं, कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना इसमें? अच्छा, अब देखें, अगर ये स्ट्रेट लाइन है या फर्स्ट टेंजेंट है, फर्स्ट टेंजेंट लाइन है, रेयर टेंजेंट है, सपोज दिस इज दी T1 पॉइंट, तो देखिए यहां से क्या होगा, ट्रांजिशन करो स्टार्ट होगा, ठीक है। हमने एक पॉइंट लिया था M पॉइंट, ठीक है, ये इसका y कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट है, और एक डिस्टेंस L है फ्रॉम दी T1 पॉइंट, T1 पॉइंट से ये L डिस्टेंस पे, सपोज ये हमारे जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए इस M पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दूं तो दैट विल बी इक्वल टू, या ये एक टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ कर दूं M पॉइंट पे, तो मेन टेंजेंट के साथ ये जो एंगल बनाता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई पे, ठीक है। दूसरी बात, अगर इस M को डायरेक्टली मैं T1 के साथ ज्वाइन कर दूं तो इसका ये जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन एंगल, ये अल्फा पे रिप्रेजेंट होता है, बिकॉज अब ये कार्ड बन जाएगा ना, T1 को आप M के साथ स्ट्रेटली ज्वाइन कर ले तो ये कार्ड होगा, तो कार्ड के साथ मेन टेंजेंट का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड दी डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। सपोज इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ सी टेंजेंट अल्फा विल बी इक्वल टू y डिवाइड बाय x, y बाय x के बराबर होगा, ठीक है। नाउ वी नो दैट टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, प्रीवियसली अगर हम क्यूबिक पैराबोला को कंसिडर कर लें, इसको कंसिडर कर ले क्यूबिक पैराबोला को, तो उसमें x क्या था, l के बराबर था, y क्या था, l क्यूब डिवाइड बाय 6r l के बराबर था, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, l क्यूब डिवाइड बाय 6r l डिवाइड बाय l, ठीक है। या इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, l स्क्वायर डिवाइड बाय 6r l, ठीक है। एंड देखें ये जो एजम्पशन हमने किया हुआ है, या ये जो y और x हमारे पास आए हुए हैं,
ये किस बेस पे आए हुए हैं? ये इसलिए आए हुए हैं कि हमने एज्यूम किया था कि cos पाई इज इक्वल टू 1 एंड sin पाई इज इक्वल टू पाई, इसलिए डायरेक्टली हमने ये वैल्यूज पुट किए ना। तो सिमिलरली अगर हम ये एजम्पशंस करते हैं कि हायर टर्म को हम निग्लेक्ट करते हैं तो टेंजेंट अल्फा किसके बराबर होगा जी? ये जिस तरह हम ये लेते हैं ना कि cos पाई इज इक्वल टू 1 sin पाई इज इक्वल टू पाई, तो टेंजेंट अल्फा क्या होगा जी? सर पाई के बराबर होगा। यार इसके साथ जो भी एंगल होते हैं यार, ये तुम देखें, टेंजेंट अल्फा जो है इट इज इक्वल टू, सॉरी, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह लिख सकते कि नहीं, साइन अल्फा डिवाइड बाय cos अल्फा। अब साइन अल्फा को हम एज्यूम करें सपोज अल्फा और cos अल्फा को एज्यूम कर ले 1, तो इससे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। ठीक है, सो cos टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू, देखिए इस टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं 1/3 इनटू एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2RL, इस तरह लिख सकते हैं जी। Yes, sir. तो आप देखें ये एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2RL किसके बराबर है, एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2RL, ये किसके बराबर है, पाई के बराबर है। पहले हमने जो डेराइव किया था देखें यहाँ पे, एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2RL इज इक्वल टू पाई, तो इट विल बी इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 3। इसका मतलब क्या है, कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको जी? इसको कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक कंक्लूजन आ गए ना हमारे पास। यस सर। सर अल्फा की वैल्यू सर पाई के हाफ 1/3 होगी सर, हाफ पाई। देखें एक्सप्लेनेशन इसका हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर ट्रांजिशन करो पे आप कोई एक पॉइंट ले लें, ट्रांजिशन करो पे आप किसी एक पॉइंट को ले लें, तो उस पॉइंट का या उस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट कर लें तो उसका जो ये टेंजेंशियल एंगल होगा ये 3 टाइम ऑफ द डिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा। मीन ट्रांजिशन करो पे अगर आप एक पॉइंट लेना तो उसकी हम 2 एंगल्स लेते हैं। एक ये है कि अगर उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लेना तो मेन टेंजेंट के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, एक तो ये हो गया पाई, और अगर उस पॉइंट को आप डायरेक्टली टेंजेंट के साथ ज्वाइन कर लें तो ये जो एंगल होगा ये उसका डिफ्लेक्शन एंगल होगा। तो किसी भी पॉइंट का जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है ये टेंजेंशियल एंगल से 3 टाइम्स स्मॉल होगा, या टेंजेंशियल एंगल किसी भी पॉइंट का 3 टाइम ऑफ द डिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा। सिमिलरली पाई 1 ये मैक्सिमम है ना, ये 3 अल्फा 1 के बराबर होगा। अल्फा 1 जो है ये लास्ट पॉइंट, जंक्शन पॉइंट का लास्ट पॉइंट मीन जंक्शन पॉइंट का डिफ्लेक्शन एंगल होगा, लास्ट पॉइंट का डिफ्लेक्शन एंगल होगा। ठीक है, तो इस मेथड से भी हम ट्रांजिशन करो को सेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक थर्ड मेथड हो गया कि किस तरह हम करो को सेट आउट कर सकते हैं। देखें that how we can set out the transition curve through this method. See, we have derived that alpha is equal to pi by 3. Yeah, we can say that pi is equal to L square divided by 2RL. So alpha is equal to
एल स्क्वायर डिवाइड बाय 6RL। अब देखें, वी हैव द टेंजेंट लाइन, ओके, हमारे पास ये एक जो बेसिक टेंजेंट लाइन है ए बी। फॉर एग्जाम्पल T1 इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन करो, ठीक है। नाउ आप एज्यूम कर ले, सपोज L इज इक्वल टू 2 मीटर, बाकी तो ये RL आपके पास गिवन होंगे, तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें, सो यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ अल्फा। तो इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे सेट कर लें, ठीक है, और अल्फा एंगल पे उसको रोटेट कर लें, और उस अलाइनमेंट में 2 मीटर आप मजर करके एक पॉइंट लगाएं, ठीक है। फिर एल को चेंज कर लें, सपोज उसको 4 मीटर कर लें, तो आपके पास अल्फा की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो इंस्ट्रूमेंट को दूसरे अल्फा पे रोटेट कर लें, और इस पॉइंट से या T1 पॉइंट से जो है आप 4 मीटर मजर कर लें स्ट्रेट उस डायरेक्शन में, ठीक है। फिर एल को चेंज कर लें, 6 मीटर कर लें, तो उसके लिए आपके पास एक और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो इंस्ट्रूमेंट को उस एंगल पे रोटेट कर ले, और अलोंग दिस लाइन जो है आप 6 मीटर मजर कर लें, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सो दैट कि एल आपके पास क्या बन जाए, कैपिटल एल। तो उसके लिए आपके पास जो लास्ट डिफ्लेक्शन एंगल आ जाएगा। सो नाउ यू विल गेट द डिफरेंट पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर लेंगे, सो यू विल गेट योर ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है फॉर द रेंजिंग आउट और सेटिंग आउट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। Okay, so now we have derived that alpha is equal to L square divided by 6RL, and remember इससे आपके पास जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो रेडियन में होगा, ठीक है। LR और ये L जो है, सपोज ये मीटर में है या फीट में है, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या होगा, रेडियन में होगा, ठीक है। अब देखें, अगर इसको हम मीन एल स्क्वायर डिवाइड बाई 6RL मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइड बाई पाई, सो अल्फा विल बी इक्वल टू 180 L स्क्वायर डिवाइड बाई 6 पाई RL। So this will be the deflection angle in degrees, ठीक है, ये डिग्रीज में होगा, 180 इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 6 पाई RL, ठीक है। या अक्सर बुक में ही इस तरह होते हैं, L इज इक्वल टू 1800 L स्क्वायर डिवाइड बाई 60 पाई RL, मीन नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को 10 पे मल्टीप्लाई कर लें, तो अक्सर बुक्स में इस तरह होता है। तो इससे जो अल्फा आपके पास आएगा that will be in degrees, या अल्फा जो है स्मॉल एंगल होता है, तो इसको अगर आपने स्मॉलेस्ट यूनिट में रिप्रेजेंट करना है, तो 1800 L स्क्वायर डिवाइड बाय 60 पाई RL, इसको अगर आप 60 पे डिवाइड कर लें तो अल्फा क्या हो जाएगा, मिनट्स में आएगा। सो 1800 L square divided by pi RL, so that is the deflection angle in minutes, ठीक है। इससे जो आपके पास वैल्यू आएगी अल्फा की वो मिनट्स में होगा। क्लियर हो गया ये? जी, so that is the deflection angle of any point on the transition curve at a distance L from T1 point, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट जो है अल्फा n, मीन लास्ट डिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 1800 कैपिटल L स्क्वायर, बिकॉज लास्ट डिफ्लेक्शन एंगल का जो डिस्टेंस है T1 पॉइंट से
उस केस में स्मॉल एल क्या हो जाएगा, कैपिटल एल के बराबर हो जाएगा ना। इट विल बी इक्वल टू पाई आर एल, या last deflection angle is equal to 1800 L divided by pi r। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अच्छा, नाउ सी सपोज अगर आपके पास वो गिवन हो, ये डिग्री ऑफ कर्व गिवन हो, ठीक है, ठीक है, ये जो इक्वेशंस आ गए हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल का, दीज आर बेस्ड ऑन द रेडियस ऑफ द कर्व। ठीक है, तो इस तरह आप इसको सिंप्लीफाई कर लें कि डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ एनी पॉइंट ऑन द ट्रांजिशन कर्व एट अ डिस्टेंस L इज इक्वल टू, ये 1800 डिवाइड बाय पाई है ना, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, मीन फर्दरली इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें 573 L स्क्वायर डिवाइड बाय आर एल आ जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट डिफ्लेक्शन एंगल जो है पाई एन, इट विल बी इक्वल टू 573 L डिवाइड बाय आर, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यूज हैं, इससे जो आंसर आपके पास आएगा अल्फा की, वो मिनट्स में होगा। रिमेंबर, इसके साथ कंफ्यूज ना हो कि आपके पास क्या आएगी, मिनट्स में। ठीक है, सिमिलरली अब देखिए, अगर रेडियस जो है ये आपके पास इन टर्म ऑफ डिग्रीज गिवन हो, या कर्व की रेडियस जो सर्कुलर कर्व होते हैं ना, उसकी रेडियस की जगह पे आपके पास क्या गिवन हो, डिग्री ऑफ कर्व गिवन हो। सो वी नो दैट रेडियस इज इक्वल टू 18.9 डिवाइड बाय डी, आर इसके बराबर होते हैं ना। ठीक है, तो फिर अल्फा क्या होगा, अल्फा जो है, अल्फा विल बी इक्वल टू 573 L स्क्वायर डिवाइड बाय 18.9 L डिवाइड बाय डी, या इट विल बी इक्वल टू, ये डी ऊपर चला जाएगा ना, थर्ड डिनोमिनेटर है, सो इट विल बिकम DL स्क्वायर डिवाइड बाय 3L, फिर अल्फा ये होगा। ठीक है, मीन 573 कैंसिल कर ले, ये 3 टाइम ऑफ द 573 बराबर है, तो इससे 1/3 आ जाएगा। सो इफ द सर्कुलर कर्व का अगर रेडियस गिवन है, so deflection angle for any point on the transition curve at a distance L will be equal to this one, and if the degree of the circular curve is given, then the deflection angle will be equal to this one। इन इससे आपके पास जो वैल्यू आएगी, रिमेंबर वो मिनट्स में होगा। ठीक है, एंड सिमिलरली लास्ट डिफ्लेक्शन एंगल जो है, इट विल बी इक्वल टू DL डिवाइड बाय R। ठीक है, DL डिवाइड बाय, सॉरी ये R तो खत्म हो जाएगी, DL डिवाइड बाय 3 एट द डिग्री ऑफ सर्कुलर कर्व इज गिवन। तो फिर लास्ट डिफ्लेक्शन एंगल ये होगा। ये हो गया ये जी। ठीक है, Yes, sir. अच्छा, so these are the different methods through which we can set out, or through which we can range out the simple circular curves। ठीक है, so अगर इसको हम summarize कर लें, तो if you are going to design a cubic parabolic transition curve, then the coordinates will be, x will be equal to L and y will be equal to L cube divided by 6RL। Yeah, the principal or the basic equation for the coordinates of different points will be y will be equal to x cube divided by 6RL। तो T1 पॉइंट से
आप x डिस्टेंस पे जाए उसके लिए y कैलकुलेट कर ले और परपेंडिकुलरली उतने आ जाए एट डिफरेंट पॉइंट्स लगाएं, सो यू विल गेट दी क्यूबिक पैराबोला। सेकंड जो है हमारे पास क्लोथाइडल करो है या ट्रू ट्रांजिशन करो है जिनका x कोऑर्डिनेट जो है दैट इज इक्वल टू l 1 माइनस l पावर 4 डिवाइड बाय 40 r स्क्वायर l स्क्वायर। ठीक है, इन किसी भी डिस्टेंस को आप एज्यूम कर ले अलोंग द लेंथ के, सपोज स्मॉल एल आपके पास 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, तो उसके लिए x कैलकुलेट कर लें और उसके लिए जो है y कैलकुलेट कर लें बाय दिस इक्वेशन l क्यूब 6rl into 1 minus l power 4 डिवाइड बाय 56 r स्क्वायर l स्क्वायर। ठीक है, मीन किसी भी लेंथ को आप ले ले, सपोज 2 मीटर, तो उसके लिए x और y कैलकुलेट कर ले। सो अलोंग दी t1 भी आप x जाए उसका y ले ले परपेंडिकुलरली, फिर l को चेंज करते जाए इस तरह x और y ले ले, सो यू विल गेट द डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस यू विल गेट योर रिक्वायर्ड ट्रांजिशन करो व्हिच इज कॉल्ड द ट्रू ट्रांजिशन करो और क्लोथाइडल करो। तीसरा मेथड जो है दैट इज बाय डिफ्लेक्शन एंगल के अल्फा इज इक्वल टू alpha is equal to 573 L square divided by RL. Okay, mean that is the deflection angle of any point on the transition curve at a distance L. तो T1 पॉइंट से आप इतना एंगल ले लें और जितना आपका L डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस आप मेजर कर ले, एक पॉइंट लगाए, फिर L को चेंज कर ले, अल्फा चेंज हो जाएगा, तो दूसरे अल्फा एंगल पे दूसरा डिस्टेंस ले लें, सो आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, रिमेंबर इससे जो अल्फा आएगा वो आपका मिनट्स में होगा। एंड इफ द डिग्री ऑफ कर्व इज गिवन देन यू विल हैव dl स्क्वायर डिवाइड बाय 3l। ठीक है, और लास्ट पॉइंट का जो डिफ्लेक्शन एंगल है या जंक्शन पॉइंट का जो डिफ्लेक्शन एंगल है it will be equal to 573 L divided by R, या लास्ट पॉइंट का डिफ्लेक्शन एंगल जो है it will be equal to DL divided by 3 if the degree of curve is given. Remember all units जो है वो मीटर्स में है। ठीक है, तो ये तीन मेथड्स हैं जिसके जरिए जो है आप कर्व को सेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है एक ये भी याद रखें कि लास्ट पॉइंट का जो टेंजेंशियल एंगल है पाई 1 दैट इज इक्वल टू L डिवाइड बाय 2R। ठीक है, इसको भी माइंड में रखिए, L डिवाइड बाय 2R। सो this was all about today in which we have discussed the basic equations for the setting out or ranging out of the transition curve. So is it clear?